Hello everyone, my name is Pradeep. I welcome you all in this session from Sun Valley School. Beta, this is the session for class 8th students because in this session we are going to talk, we are going to study the pronunciation junction of the chapter number 1 of our English course book. Next English. So what we are going to study in the pronunciation junction of the chapter number 1, let us see. This is the section. Actually, in this section, we have to focus on the intonation. Intonation has been emphasized. अब intonations क्या होते हैं? It has been already taught in your previous classes. आप class 6 में भी पढ़े होंगे, class 7 में भी पढ़े होंगे. I hope. So, if I ask what is intonation, then we can say that intonation is a way of speaking during speaking, the up and down of our pitch, up and down of our voice overs is called the intonations. जब हम कुछ भी बोलते हैं तो कहीं पे भी थोड़ा सा जो हमारी बोलने की पिच होती है वो थोड़ा कहीं तेज होती है, कभी स्लो होती है. तो जो ये डिफरेंसेस हैं, ये अप एंड डाउन है, this is called the intonations. I remember that in class 7, in the last chapter, we studied about the different types of intonations. The first one was falling intonation. The second one was the rising intonation, and the third one was falling and rising intonation. तो 3 अलग-अलग तरह के falling intonations हैं. उन्हीं तीनों का हम लोग इस सेक्शन में आज रिवीजन करेंगे. तो before the revision, before talking more about that different types of intonations, first of all, we have to go through these examples. So what is there? What is written there? Let us read. Read these lines from the story. This is not the baby. This is not the baby. She exclaimed. This is not the baby. She exclaimed in startled tones. French was the language spoken at the Walmundo in those days. Actually, in this line, this sentence was told by the Madame Balmunde. And what is the way and how Madame Balmunde spoken this sentence? We have to look into that. तो यहाँ पे जो इंटोनेशन यूज हुआ है, क्या हो रहा है? This is not the baby. यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, जो ये आपका सेंटेंस है, यहाँ पे फॉलिंग इंटोनेशन है या राइजिंग इंटोनेशन है, ये हमें चेक करना है. सेकेंड, अभी हम बारी बारी से सारे सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, फिर वन बाय वन डिस्कस भी करते हैं किसमें किस तरह के इंटोनेशंस हैं. I knew you would be astonished, laughed Desiree, at the way he has grown. The little cochon, the late. Look at his legs, Mama, and his hands and fingernails. Real fingernails. Jandrine had to put them in this morning. Is not it true, Jandrine? अब यहाँ पे क्या है? This is a question tag actually. This is a question tag. अब ये question tag जो होंगे, क्या वो falling intonations होंगे या rising intonations उसमें होगा, या दोनों हो सकते हैं? Actual में दोनों हो सकते हैं. कब हमारा falling intonations होगा, कब हमारा rising intonations होगा, we would be reading in this section. So these are the couple of examples. अब इसमें क्या है? Actually, in both of the sentence, we found that these dialogues takes place between Desiree and Madame Balmunde. जो ये दोनों discussion है, ये दोनों dialogues है, ये दोनों के बीच में हुआ. Let us take a look at the dialogues. अब dialogues पे अब ध्यान देते हैं. आपके बुक्स में क्या बोला गया? This is not the baby. And the second dialogue, ये डेजरी जो कहती है मैडम बॉलमुंडे को, जो ये स्टेटमेंट देती है. Whenever we read these conversation in a flat tones, एक बार हम इसको फ्लैट टोन्स में एक बार पढ़ते हैं. I knew you would be astonished at the way he has grown, the little cochon. यानी कहने का मतलब यह है, whenever we read this statement in a flat tone, then maybe no one can understand what I want to say. अगर किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को विदाउट इंटोनेशन
जो एक प्रॉपर इंटोनेशन को बिना फॉलो किए हुए अगर हम उसको एक फ्लैट टोन में पढ़ें, एक ही टोन में सारे वर्ड्स पढ़ डालें, तो शायद क्या होगा, ये 100% है कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा और उसका क्या कहना चाह रहे हैं उसका मतलब ही नहीं समझ पाएगा। द सेम थिंग्स हैज बीन रिटन इनटू योर बुक। क्या लिखा गया है? रीड द कन्वर्सेशन इन फ्लैट टोन, ऑलरेडी वी हैव रेड। विदाउट एनी वेरिएशन इन योर वॉइस, हाउ डज इट साउंड? आखिर बिना वेरिएशन के जो साउंड है, इसको रीडिंग के समय अगर हम कोई वेरिएशन ना लाएं, कोई अप एंड डाउन ना लाएं, अभी ऐसे पढ़ें, आई न्यू यू वुड बी एस्टोनिश्ड एट द वे ही हैज ग्रोन द लिटिल कुछ, मतलब एक ही तरह से सारे वर्ड्स को पढ़ें, तो क्या हो रहा है? When we speak or read without paying attention, यानी बिना अटेंशन के, बिना किसी वेरिएशन के अगर हम जब इसको पढ़ते हैं तो क्या होता है? विदाउट पेइंग अटेंशन टू इंटोनेशन, बिना इंटोनेशन पे अटेंशन, बिना इंटोनेशन को ध्यान दिए हुए अगर हम इसको पढ़ते हैं तो क्या होता है? We lose out on the meaning of the sentence. आखिर जो सेंटेंस का मीनिंग है उसको हम खो देते हैं। सेंटेंस का जो मतलब निकल के आ रहा है वही, उसी को ही खो देते हैं और सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं वो चीजें नहीं क्लियर हो पाती। तो इंटोनेशन का ये रोल है। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, लेट अस सी। अब इंटोनेशन होता क्या है? वही बात जो अभी मैंने बताया, इंटोनेशन इज द राइजिंग एंड फॉलिंग टोन ऑफ वॉइस व्हेन स्पीकिंग। जो इंटोनेशन है, इट इज द राइजिंग एंड फॉलिंग टोन ड्यूरिंग स्पीकिंग। जो अप एंड डाउन होता है व्हाइल स्पीकिंग, जो आपका हमारे बोलने का जो फ्लो होता है, जो पिच होता है कि कभी तेज बोल रहे हैं या कभी स्लो बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटोनेशन। वही इंटोनेशन है। इट एम्फसाइजेस हाउ वी से, ध्यान देने की बात है, इट एम्फसाइजेस हाउ वी से रादर देन व्हाट वी से। जो इंटोनेशन है वो ये नहीं बताता कि आखिर हम क्या बोल रहे हैं, ये हम कैसे बोल रहे हैं इस पे एम्फसाइज करता है। व्हाट वी आर टेलिंग इट डजंट मैटर। यहाँ पे जो कंटेंट हम क्या पढ़ रहे हैं डजंट मैटर, बट हाउ वी आर स्टडिंग, हाउ वी आर रीडिंग द सेंटेंस, हाउ वी आर टेलिंग द सेंटेंस, हाउ वी आर स्पीकिंग द सेंटेंस, ये इंटोनेशन से क्लियर होता है। इंटोनेशंस में हमें ये जानने को मिलता है। तो कहने का मतलब इंटोनेशन एम्फसाइज में से एक तरीके से दबाव डालना। इंटोनेशन एम्फसाइजेस हाउ वी से रादर देन व्हाट वी से। जो इंटोनेशन है, कोई भी सेंटेंस को कैसे पढ़ा जा रहा है इस पे, इसको एम्फसाइज करता है, ना कि क्या कहा जा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे नहीं ध्यान दिया जाता इंटोनेशन में। Listen to somebody speaking without paying attention to the word and the melody you hear is the intonation. जब कोई सॉन्ग ही कोई प्रेजेंट करे मान लीजिए, या कोई सेंटेंस, कोई बात अपनी रख रहा हो, अगर वहां पे बिना इंटोनेशन के ध्यान दिए हुए वो पर्सन बोल रहा है, तो क्या हम शायद एक बार सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शायद समझना मुश्किल हो जाता है। ये तो वही सारी बातें हुई। कई बार आप सबको आपके किसी भी मतलब कोई फंक्शन होता है तो उसमें आपको स्पीच बोलने के लिए या कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे कुछ बोलने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो क्या होता है कि जब हम नए होते हैं, जब बच्चे होते हैं, तो कई बार वो एक ही टोन में सारी चीजें पढ़े जा रहे हैं, जैसे किताब पढ़ रहे हो। किताब भी पढ़ने में इंटोनेशंस को फॉलो करना चाहिए। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, हम बड़े होते हैं, फॉलो भी करने लगते हैं, बट एट एन इनिशियल स्टेज क्या होता है, सारे वर्ड्स एक जैसे पढ़ते जाते हैं, बिकॉज कई बार हमें वर्ड्स के मतलब भी नहीं पता होते। और ऐसे में जब बिना इंटोनेशन के सारे वर्ड्स एक जैसे पढ़ते जाएंगे तो क्या मतलब समझ में आएगा कि कौन सी बात कहाँ पे समाप्त हो गई और कौन सी बात कहाँ से शुरू हो रही है, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इंटोनेशन का ये रोल है कि आखिर कोई पर्सन क्या कहना चाह रहा है, कैसे करना चाह रहा है, आखिर पर्सन का जो बोलने का तरीका है, पर्सन कैसे फील कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, उस पर्टिकुलर सेंटेंस को कैसे पिच कर रहा है, वो दिखाता है। बाकी की चीजें देखते हैं। Intonation is a crucial for communication. Intonation is crucial for communication. Correct use of intonation helps us to effectively convey your message. Correct use of intonation can help us to effectively convey our message. अगर यही कोई भी मैसेज किसी को भी करना है, मैसेज यानी कुछ कोई बात किसी को ट्रांसफर करनी है, बातें करनी है, there are many other examples, there are many leaders. हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो सकते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हो सकते हैं, कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं, कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे रहे हैं पहले भी, जिनकी बातों, जिनके स्पीच,
जहां पे जो उनका इंटोनेशंस होता है वो अपने इंटोनेशंस के बलबूते पे ही पूरे पब्लिक को अपने कंट्रोल में रख लेते हैं, यानी लोगों को आपस में कनेक्ट कर किए रहते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, लोग ध्यान से सुनते भी हैं। तो इंटोनेशन का यूज, द करेक्ट यूज ऑफ इंटोनेशन कैन हेल्प अस टू इफेक्टिवली कन्वे आवर मैसेज टू द पब्लिक और ऑडियंस। बट लेकिन incorrect use of intonation may confuse the listener, causing the message to be misunderstood or misinterpreted। ऐसे भी कई सारे लीडर्स हैं कि कई बार वो बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन उसका मतलब कुछ और निकाल लिया जाता है। इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ इंटोनेशन ओनली। ड्यू टू द लैक ऑफ इंटोनेशन हम कुछ कहना कुछ और चाहते हैं, उसका मतलब कुछ और निकाल लिया जाता है। कई बार इसी वजह से वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्शन आता है। सो आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड द करेक्ट यूज ऑफ इंटोनेशन। आखिर इंटोनेशन का ये करेक्ट यूज क्यों करना चाहिए, हमें इसका मतलब समझ में आया होगा। नाउ वी हैव टू रिवाइज द रूल्स ऑफ इंटोनेशन विथ एग्जांपल्स। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे कि आखिर इंटोनेशंस, अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटोनेशन। ऑलरेडी इस सेशन के शुरुआत में मैंने बताया, आपको पिछली क्लास में भी बताया गया। द फर्स्ट वन फॉलिंग इंटोनेशन, राइजिंग इंटोनेशन एंड फॉलिंग एंड राइजिंग इंटोनेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटोनेशंस। वो तीनों टाइप्स ऑफ इंटोनेशंस के एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। अभी एग्जांपल्स देखेंगे। द फर्स्ट रूल, whenever we are having a sentence starting with WH question, whenever we are having a question interrogative sentence, we can say interrogative sentence, कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है और वो प्रश्न और वो सेंटेंस या वो क्वेश्चन WH वाले क्वेश्चंस होते हैं। वो सेंटेंस जो है WH वाले से शुरू होते हैं। WH मींस व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। इस तरह के जो WH वाले क्वेश्चन वर्ड्स हैं उससे वो सेंटेंस शुरू होते हैं। उस तरह के सेंटेंस के लिए में किस तरह के इंटोनेशंस हम फॉलो करते हैं उसको जरा देखते हैं। In that kind of sentence we use the following intonation। जो इंटोनेशन यूज किया जाता है that is a following intonation। For example, if we are asking a question, not for the example, for the example, what time does the film start? अभी मैं पूछूं what is your name, what is your name, अभी मैं पूछूं आपसे what is the time, what is your age, what is your, which is your subject, which is your subject, then we would be finding that कि we are having a falling tone। हम यहाँ पे तो थोड़ा सा अप रहते हैं लेकिन लास्ट में जाते जाते हमारा जो टोन है वो डाउन की तरफ फॉलिंग यानी गिरने लगता है। What time does the film start? What time does the film start? What is your name? What is your name? So this kind of sentence, that means कि whenever we are having a sentence starting with WH question words, whenever we are having an interrogative sentence starting with WH question words, that kind of sentences would be having a falling intonation। इस तरह के sentences में हमें falling intonations देखने को मिलेंगे। I hope it is clear। The second rule, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो गई। अगर WH यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू, जो WH वाले क्वेश्चन वर्ड्स हैं उस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो गई। अब कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपका नॉर्मल स्टेटमेंट है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन नहीं है, वो नॉर्मली एक स्टेटमेंट है कि मैं भी बोलूं कि द लाइव क्लास इज गोइंग ऑन। लेट्स से कि समवन आस्क वेयर इज अरुण, तो कोई स्टेटमेंट देगा, कोई बताएगा, कोई इंफॉर्मेशन देगा कि अरुण इज टेकिंग द लाइव क्लास या अरुण इज स्टडिंग इन हिज रूम। तो कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी नॉर्मल एक पॉजिटिव सेंटेंस आपका स्टेटमेंट हो सकता है और उस स्टेटमेंट में किस तरह का इंटोनेशंस फॉलो हो सकता है, उस तरह के स्टेटमेंट में एक नॉर्मल जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें आपको कहीं ना कहीं फॉलोइंग इंटोनेशंस आपको देखने को मिल सकता है। कैसे? दैट इज माय हाउस। अभी किसी ने पूछा दैट इज व्हाट आर यू डूइंग, तो आपने बोला कि आई एम टेकिंग माय क्लास, आई एम टेकिंग माय क्लास। तो दैट मीन्स हियर at the end of the last word, in the sentence, that is my house, that is my house,
on the last word we are actually the voice of the tone is falling. जो हमारा बोलने का तरीका है वो जो टोन है वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा रही है लास्ट वर्ड पे. जब लास्ट वर्ड कोई भी सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड है अगर आप उस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं तब आपका टोन कहीं ना कहीं अप हो रहा है, यानी वहां पे फॉलिंग नहीं राइजिंग टोन की तरह बोलेंगे कि यहाँ पे आपका राइज हो जा रहा है. लेकिन आप ये सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो क्या हो, दैट इज माई हाउस, यानी हाउस को आप कहीं ना कहीं अब फॉलिंग, अब यहाँ पे जो टोन आपका वो फॉल मतलब नीचे गिर रहा है. दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि अगर whenever we are having a normal statement, in the normal statement we would be having a falling intonation. यानी एक WH वाले क्वेश्चन वर्ड अगर होंगे, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें भी आपको फॉलिंग इंटोनेशंस हमें देखने को मिल सकता है. और अगर कोई नॉर्मल स्टेटमेंट्स है देयर आल्सो वी वुड बी गेटिंग अ फॉलिंग इंटोनेशन. ओके, intonation should fall at the end of the declarative statements. Falling intonation shows certainly and completion. जो आपका डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव मतलब इसको आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है वहां पे कहीं जो आपका इंटोनेशन है वो फॉलिंग इंटोनेशन होना चाहिए, यही कहा गया है. The next point is exclamatory sentences. Exclamatory sentences and commands would be having a falling intonation. अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अगर आप कहीं पे सरप्राइज हो जा रहे हैं या फिर कहीं दुखी हो जा रहे हैं, कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ कोई सेंटेंस आप बोल रहे हैं, तो वो उस तरह के सेंटेंस या कोई कमांड दे रहे हैं, आप किसी को निर्देश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो उस तरह के सेंटेंस में भी हम कहीं ना कहीं फॉलिंग इंटोनेशंस का यूज करते हैं. वहां पे भी हमें फॉलिंग इंटोनेशंस का एग्जांपल देखने को मिलता है. फॉर द एग्जांपल, हाउ नाइस ऑफ यू, हाउ नाइस ऑफ यू. एक्चुअली यू पे हम एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, यू पे हम बहुत तेजी से बोलने का, बहुत ऊंचा बोलने की का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि बहुत तेजी से बोलें. एक्चुअली हाउ पे तो थोड़ा हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, हाउ को तो थोड़ा सा हम लाउड बोल रहे हैं, बट यू को हम लाउडली नहीं बोल रहे हैं. इन द सेम वे, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप को तो आप ज्यादा तेज से बोल रहे हैं, ज्यादा लाउड बोल रहे हैं, बट इट, स्टॉप के मुकाबले जो इट है उस पे जो आपके हमारे जो बोलने का साउंड है वो थोड़ा सा स्लो हो रहा है, यानी लो हो रहा है, यानी जो हमारा साउंड का लेवल है वो कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है, कम हो रहा है, फॉल हो रहा है. दैट मीन्स whenever we are having exclamation sentences or commands, there we would be getting a falling intonations. वहां पे हमें falling intonations मिलेगा. There are one more kind of interrogative questions कि जिसके आंसर आप yes या no में केवल दे सके. अगर मैं पूछ लूं, are you a teacher, are you married, are you girl, are you boy, many questions can be, are you thirsty. तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आप क्या, हम क्या बोल सकते हैं, यस और नो. यस आई एम थर्स्टी, आप आई एम थर्स्टी बोले या ना, यस या नो में भी आपका आंसर आपका कंप्लीट है. आर यू थर्स्टी, आप क्या बोलेंगे, यस. नहीं थर्स्टी है तो ऑब्वियसली बात है नो. आर यू हंग्री, तो व्हाट, अब यहाँ पे हम बोलने में क्या देख रहे हैं, आर यू थर्स्टी, आर यू हंग्री, आर यू मैरिड, आर यू स्टूडेंट. what we are getting, the last word, जो last word है thirsty, hungry, student, इसमें कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा जो हमारे बोलने का जो साउंड है वो थोड़ा सा हाई हो रहा है. Are you thirsty, are you thirsty, are you hungry, hungry, यानी hungry को हम emphasize करने की कोशिश कर रहे हैं, hungry पे थोड़ा सा हम loud हो रहे हैं, हमारा जो वॉइस ओवर है, हमारा जो टोन है वो थोड़ा सा अप ऊंचा हो रहा है. दैट मीन्स कि ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके आंसर यस या नो में हो उसमें जो है हम राइजिंग इंटोनेशंस पाते हैं. इस तरह के क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चंस के, इस तरह के सेंटेंसेस में हमें राइजिंग इंटोनेशंस का एग्जांपल दिखता है. इफ वी आर आस्किंग ए क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड विद ए यस और a no, the tone rises on the final stressed syllable of the question. जो फाइनल वर्ड है उस पे कहने का जो टोन है वो राइज होगा, वो ऊंचा होगा.
द नेक्स्ट पॉइंट, मेनी टाइम्स वी रिक्वेस्ट समवन। अब रिक्वेस्ट ऑब्वियस सी बात है कि एग्रेसिवली तो किया नहीं जा सकता कि किसी को आप भड़का के डांट के तो रिक्वेस्ट करेंगे नहीं, पोलाइटली ही रिक्वेस्ट करेंगे, आराम से ही रिक्वेस्ट करेंगे, तभी रिक्वेस्ट आपका एग्री माना भी जाएगा। कि किसी को ऐसा तो है नहीं कि डांटते हुए आप रिक्वेस्ट करते होंगे। तो अब पोलाइट रिक्वेस्ट यहाँ पे लिख दिया गया, आप पोलाइट रिक्वेस्ट बोले या रिक्वेस्ट मोड में ही बोले। व्हेनेवर वी आर हैविंग अ सेंटेंस दैट इज हैविंग द रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट तभी हो सकता है, इंग्लिश में रिक्वेस्ट तभी हो सकता है जब आप प्लीज वर्ड का यूज करें। व्हेनेवर, इंग्लिश में रिक्वेस्ट का मतलब प्लीज। पोलाइट काइंडली अगर बोलेंगे तो रिक्वेस्ट नहीं बोला जाएगा, एक तरीके से पोलाइट वे हो जाएगा। बट रिक्वेस्ट अगर आ गया तो रिक्वेस्ट मींस प्लीज आपको यूज करना जरूरी है। तो whenever we are having a sentence that where we are having a request, where we are having a polite request, तो उस तरह के sentences में जो हमारा intonation होगा वो कौन से किस तरह का intonation होगा? There we would be having a rising intonation. For the example, could you close the window, please? Could you close the window, please? Could you close the window, please? प्लीज को आप एम्फसाइज कर रहे हैं, could you close the window, प्लीज। यहाँ पे आप प्लीज को देखेंगे, प्लीज को पहले तो आपने यहाँ पे एक नॉर्मल एक तरीके से आपने पोलाइटली वे में एक सेंटेंस बोला, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, could you close the window, क्या आप विंडो क्लोज कर सकते हैं। फिर आपने क्या बोला, प्लीज, यानी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली यू आर फोकसिंग ऑन हियर। इन द सेम वे, कैन यू हेल्प मी प्लीज, कैन यू हेल्प मी please, that means we are trying to emphasize on the please word. please words पे जब हम emphasize करें, जहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें, वो हम फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे ज्यादा समय दे रहे हैं, उसको लाउडली बोल रहे हैं और वर्ड्स के अपेक्षा, that means कि वहाँ पे हमारा टोन आप ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ जाएगा, राइज होगा। तो इस तरह के सेंटेंस में whenever we are having a sentence having request, that kind of sentence would be having a rising intonation. तो rising intonation के दो एग्जांपल्स हो चुके हैं। कब कब, जब हमें कोई क्वेश्चन यस या नो में आंसर करने वाला क्वेश्चन मिले या फिर कोई रिक्वेस्ट मिले। यहाँ पे केवल दो राइजिंग इंटोनेशंस हमें यहाँ पे दिखाई पड़े हैं, और अभी तक जितना पढ़े थे नॉर्मल स्टेटमेंट अगर हो या फिर WH वाले क्वेश्चन वर्ड्स हो, ये सारे जो क्वेश्चन वर्ड्स थे या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो या कमांड्स हो, उन सब में आपको क्या आया था, फॉलिंग इंटोनेशंस मिला था। वन, द नेक्स्ट वन इज वी आर हैविंग सम टाइम वी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम समवन, और वो क्वेश्चन में मतलब ऑप्शनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू स्पीक इंग्लिश और जर्मन, डू यू स्पीक इंग्लिश और हिंदी, Are you studying in class 4th or 5th? Are you a boy or girl? यानी दो ऑप्शन हम दे रहे हैं, उनमें से एक आंसर हो सकता है, उनमें से एक आंसर हो सकता है कि नहीं, उन्हीं में से एक कोई आंसर है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसमें क्या होता है, डू यू स्पीक इंग्लिश और जर्मन, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि वी आर हैविंग अ फॉलोइंग इंटोनेशंस। डू यू स्पीक इंग्लिश और हिंदी, आर यू अ बॉय और गर्ल। आप ध्यान दे रहे हैं, बॉय की अपेक्षा जो गर्ल्स पे जो हमारा साउंड है वो कहीं ना कहीं लो है, जो हमारा हम कहीं ना कहीं बॉय की अपेक्षा जो गर्ल्स पे कम एम्फसाइज कर रहे हैं, यानी जो हमारा टोन है वो डाउन हो रहा है, फॉल हो रहा है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि व्हेनेवर वी आर हैविंग अ सेंटेंस जिसमें कोई पर्सन किसी और पर्सन से कोई क्वेश्चन पूछे और उसका अल्टरनेटिव उसमें उपलब्ध हो, when we are asking someone a question where we want them to choose between alternative, जहां पे हम ये चाह रहे हैं कि वो सामने वाला पर्सन उन दोनों अल्टरनेटिव में से एक आंसर चुने, तो there is a rising and then a falling tone। तो वहां पे एक राइजिंग टोन फिर फॉलिंग टोन हो सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। डू यू स्पीक इंग्लिश और हिंदी, तो यहाँ पे इंग्लिश पे आपका राइजिंग टोन है, बट यहाँ पे जर्मन आपका फॉलिंग ही है। इंग्लिश पे मैंने अभी नहीं कहा था, बट जर्मन की केवल बात किया था। इसी तरह डू यू स्पीक इंग्लिश और हिंदी, तो हिंदी पे कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली डाउन हो रहा है साउंड्स, तो हिंदी तो आपका एक तरीके से फॉलिंग टोन हो गया। बट जो पहला सेंटेंस है
पहला क्लॉज आप कह सकते हैं, क्लॉज भी नहीं कह सकते, जो आपका पहला अल्टरनेटिव है वहां पे थोड़ा सा हम एम्फोसाइज करते हैं। दैट मीन्स कि वहां पे आपका फॉलिंग टोन और सबसे पहले राइजिंग टोन होगा फिर फॉलिंग टोन होगा। दैट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस काइंड ऑफ सेंटेंस would be having a falling rising intonation. There is a third kind of intonation, falling rising intonation या rising falling intonation। चार तरह के होते हैं एक्चुअल में, falling intonation, rising intonation, तीसरा आपका falling rising intonation, चौथा आपका rising falling intonation। अब इसमें से कई बार लिस्ट आ जाती है तो शुरू में पहले राइजिंग राइजिंग ही रहता है, फिर जैसे जैसे लिस्ट आगे बढ़ती जाती है और जो लास्ट वाला वर्ड होता है वहां पे फॉलिंग इंटोनेशन फॉलो हो जाता है। अभी उसको भी पढ़ेंगे। हाँ, लिस्ट आ गया। Whenever we are having a list, कई बार हम लोग मार्केट जाते हैं, many times we go to the market having a list that what to purchase from the market. There may be many things। तो उसमें से बोला जा रहा है कि कई सारे सामान हैं, तो लिस्ट की जब बारी आती है जो आप सामान को पढ़ते हैं, whenever we read all the things what we need to be purchased, तो शुरू में क्या करते हैं, जो शुरू के जो आइटम्स होते हैं उसको तो हम थोड़ा लाउडली बोलते हैं, और जैसे जैसे वो खत्म होने की कगार पे आता है लास्ट वाला वर्ड आराम से बोल के, यानी वहां पे लास्ट वाले वर्ड्स पे जो हमारा टोन होगा वो फॉलिंग टोन होगा, वहां पे हमारा टोन स्लो हो जाएगा, लो हो जाएगा, और दुकान वाले को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ खत्म हो गया। और अगर आप ऐसा नहीं फॉलो करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा कि अभी और कुछ बोलेगा, वो इंतजार करेगा थोड़ी देर। लेकिन अगर आप प्रॉपर इंटोनेशन यूज कर रहे हैं तो आप जैसे ही रिस्पॉन्ड किए, खत्म कंप्लीट किए, तुरंत ही वो आपको रिप्लाई कर देगा। लेकिन अगर इंटोनेशन आपका प्रॉपर नहीं है तो वो आपका मुंह देखता रह जाएगा कि शायद अभी एक आध लिस्ट और एक आध नाम और बताएं। देखते हैं एग्जाम्पल इसमें, राइजिंग 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 फॉलिंग। अब ये राइजिंग राइजिंग कई बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, कई बार हो सकता है। Whenever we are listing out a few object, whenever we are listing out a few object, we take a whenever we are listing out a few object, we take a rising tone as the list goes on, and as the list goes on, and on the very last object the tone falls। जो very last वाला जो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट होगा उस पे हमारा टोन क्या होगा, वो फॉल होगा, यानी कम होगा, यानी वहां पे फॉलिंग टोन आ जाएगा। तो पहले इस एक एग्जांपल देखते हैं। आई वेंट टू द मार्केट टू गेट सम, आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया, टू गेट सम, क्या प्राप्त करने के लिए, सम क्या, सम ग्लू, सम सीजर्स, पेपर्स, ग्लिटर, पेन्स एंड बुक्स। अब इसको अगर मैं रीड करना हूं तो कैसे पढ़ेंगे, I went to the market to get some glue, scissors, papers, glitters, pens and books. And books. ऐसे नहीं बोल रहे हैं, glue, scissors, papers, glitters, pens and books। क्या हुआ, glue और scissors जिस वे में हमने पढ़ा है उस तरीके से उस टोन में बुक्स को नहीं पढ़ा, उस अंदाज में बुक्स को नहीं पढ़ा। यहाँ पे टोन तो हमारा अप है, लेकिन यहाँ पे जो टोन है हमारा वो डाउन हो रहा है, फॉल हो रहा है। यहाँ पे जो टोन हमारा राइज हो रहा है। तो इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन टैग के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन टैग आप लोगों को क्लास 5 में पढ़ाया गया होगा। कोई भी आपका सेंटेंस है उसका क्वेश्चन टैग बनाना भी सिखाया गया होगा। आप में से अगर किसी को नहीं आता होगा तो आप अपने स्कूल के पेज पे, अपने स्कूल के इसी चैनल पे आप क्वेश्चन टैग नाम का कोई फाइल आप क्लास 5 के इंग्लिश, नेक्स्ट इंग्लिश क्लास 5 के प्लेलिस्ट में आप सर्च करिएगा, यू विल बी गेटिंग, या क्वेश्चन टैग ही सर्च करिएगा, अपने चैनल पे मिल जाएगा, या आप लोग मुझे व्हाट्सएप करिएगा, आई विल सेंड यू द लिंक कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। फिलहाल क्वेश्चन टैग में हैव, अब क्वेश्चन टैग की बात करें तो यहाँ पे अब कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। क्वेश्चन टैग में हैव द राइजिंग टोन एज वेल एज इट में हैव अ फॉलिंग टोन। जो क्वेश्चन टैग है वो राइजिंग टोन भी, क्वेश्चन टैग में राइजिंग टोन भी हो सकता है और फॉलिंग टोन भी हो सकता है। अब कब फॉलिंग टोन होगा और कब राइजिंग टोन होगा ये मायने रखता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसको जरा देखते हैं। A question tag may have a falling intonation or rising intonation। ठीक है। It is a nice day today, is not it? It is a nice day today, is not it? Actually आपको थोड़ा सा यहाँ पे फील करना पड़ेगा इस सेंटेंस को। अगर हम आप बोले तो क्या होगा, कब बोलेंगे।
अभी मौसम है, आप भी सामने हैं, हम भी सामने, देख रहा हूँ आज थोड़ा सा अच्छा मौसम है, काफी है, ना ज्यादा धूप है ना थोड़ा सा बादल है, बारिश भी नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, वो भी आज की डेट में। तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए नाइस डे टुडे, इज नॉट इट? और इसमें क्या है, इस सेंटेंस में मुझे पता है आप भी सामने हैं, मैं भी सामने हूं, हम दोनों यहाँ पे वेदर कंडीशंस को देख रहे हैं। और इसमें एक तरीके से जो इज नॉट इट, मैंने पूछ तो लिया है यहाँ पे क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली इट इज नॉट ए क्वेश्चन। बस मैं ये चाह रहा हूं कि हाँ तुम भी बोल दो हाँ, बस तुम्हें मैं इन्वॉल्व करना चाह रहा हूं इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। एक्चुअली दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आप आंसर बताएं तभी तभी जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो। इट इज ए नाइस डे टुडे, इट इज ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इज नॉट इट? इज नॉट इट मतलब बस आप यस बोलेंगे या नो नो बोलेंगे, जो भी रहेगा जो एक्चुअल में होगा वही आप बोलेंगे। तो यानी कहीं ना कहीं मुझे इसका आंसर, मैं इसमें पूरी तरह श्योर हूं, इस सेंटेंस में मैं पूरी तरह, इस स्टेटमेंट में मैं पूरी तरह श्योर हूं, बस मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूं। इज नॉट इट, ये क्वेश्चन टैग लगा के, और जब इस तरह के क्वेश्चन टैग, जब हम श्योर हो, जब कोई सेंटेंस बोलते समय श्योर हो, उसके प्रति श्योर हो, उसको लेकर के श्योर हो, बिल्कुल कंफर्म हो, तब जो हम क्वेश्चन टैग लगा करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस समय आपका जो टोन होगा वो फॉलिंग इंटोनेशन होगा। तो वहां पे आपको फॉलिंग इंटोनेशन का एग्जांपल मिल जाएगा। वहां पे जो टोन है होगा वो फॉलिंग टोन होगा, या जो टोन है आपका फॉलो मतलब फॉल होगा। लेकिन यहाँ पे आप एक दूसरा सेंटेंस एक बार पढ़ेंगे, जब यू हैव बीन ऑन लीव, हैव नॉट यू, यू हैव बीन ऑन लीव, हैव नॉट यू, हैवंट यू, हैवंट यू, you have been on leave, haven't you, haven't you? Actually this is a question। अब यहाँ पे कोई पर्सन कोई मिला, तो ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए मैं डेली स्कूल आता हूँ, अगर मैं किसी दिन टहलते हुए मार्केट में मिल जाऊँ किसी को, तो वो साफ साफ बोलेगा कि सर शायद आज आप छुट्टी पे हैं। अभी राहुल सर मान लीजिए आज छुट्टी पे थे, समवन मीट्स हिम, उनका क्लास का समय हो रहा है, वो दुकान पे अपने बैठे हैं, तो क्या होगा, लोग बोलेंगे कि सर आई थिंक यू हैव बीन ऑन लीव टुडे, हैव नॉट यू, हैवंट यू। तो हैवंट यू मतलब एक्चुअल में वो जो बोलना था उसने बोला, जो स्टेटमेंट बोलना था बोला, लेकिन जो हैवंट यू यहाँ पे क्वेश्चन टैग हुआ, ये एक तरीके से क्वेश्चन हुआ, वो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप सच में आप लीव पे हैं। अब उनका आंसर देना यहाँ कंपलसरी बन जाता है, एक तरीके से एक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं इस क्वेश्चन वर्ड से। इस वाले क्वेश्चन टैग में हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाह रहे हैं, बस उसको अपने स्टेटमेंट में केवल उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में वी आर आस्किंग समथिंग, और सामने वाला पर्सन हमें कुछ बताएगा, कोई इंफॉर्मेशन देगा। तो ऐसा क्वेश्चन टैग जहां पे हमें सामने वाले से कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा हो, जहां पे हम इसके प्रति पूरी तरह श्योर ना हो, अब मैं पूरी तरह श्योर तो नहीं हो सकता ना कि वो लीव पे हैं या नहीं है, क्या बातें हैं, हो सकता है छुट्टी हो, तो हम श्योर नहीं है। जब हम किसी बात को लेकर के श्योर ना हो, कंफर्म बिल्कुल ना हो, और उसके लिए उसको कंफर्म करने के लिए जो क्वेश्चन टैग हम लगाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के सेंटेंसेस में जो हमारा इंटोनेशन होगा, देयर विल बी अ राइजिंग इंटोनेशन। वहां पे हमारा जो लास्ट वाला हैवंट यू पे हमारा टोन जो है वो अप जा रहा है, हमारा जो टोन है वो राइज कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमें राइजिंग इंटोनेशंस का एग्जांपल्स दिखते हैं। लेकिन ऐसा सेंटेंस जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन टैग है, वो सिर्फ किसी दूसरे को इन्वॉल्व करने के लिए यूज किया गया हो, इस तरह का सेंटेंस में हमें फॉलोइंग इंटोनेशंस के एग्जांपल्स मिलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। बेटा अब इसके बाद कुछ सेंटेंसेस है, आई थिंक किस किस तरह के सेंटेंस में आपको फॉलोइंग इंटोनेशंस या राइजिंग इंटोनेशंस मिलेंगे, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, अधिकतर चीजें समझ में भी आई होंगी। अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, इस एग्जांपल्स को भी हम लोग पढ़ते हैं, और कौन सा इंटोनेशंस है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में उसको भी हम लोग चेक करेंगे। देयर आर सम इंफॉर्मेशन इन रेड कलर, लेट अस चेक दैट की व्हाट इज रेड। इन सम लैंग्वेजेस, कई सारी भाषाओं में क्या है, we use intonation to express question even if the sentence is not grammatically a question. Yes, absolutely correct. मैं कई बार पूछता हूँ, we were
in our last question, in our last class, we were studying the exercise 2.5. ये तो एक तरीके से सेंटेंस हो गया. कई बार हम लोग पूछते हैं ना कि लेट्स से कि someone at our home, someone is going to the market. Let's say कि my father is going to the market. Let's assume that कि my father is going to the market. मेरी माता जी हैं, वो पूछती है कि आपके पिताजी घर गए, आपके पिताजी मार्केट गए. यहीं से इन क्वेश्चन में बोल सकते आपके पिताजी मार्केट गए. ये तो एक तरीके से इंफॉर्मेशन हो गया. लेकिन कई बार इसी सेंटेंस को हिंदी में ही क्या आपके पिताजी मार्केट गए, क्या वर्ड नहीं यूज हुआ, आपके पिताजी मार्केट गए. अगर हिंदी में तो एक तरीके से क्वेश्चन हुआ वहां पे आपके पिताजी मार्केट गए. अब जो हमारा जो एक्सप्रेशन लास्ट में होता है कहीं ना कहीं हम कुछ इंफॉर्मेशन गेन करना चाह रहे हैं, तो वहां पे एक तरीके से क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह वो सेंटेंस काम करता है. इन इंग्लिश में अगर बात किया जाए इसी सेम सेंटेंस को, अभी मान लीजिए लेट्स से कि आई एम गोइंग टू द मार्केट. मैं किसी को इंफॉर्मेशन ये दे सकता हूं, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट. किसी ने पूछा कहां पे जा रहे हो, आई विल स्पीक आई एम गोइंग टू द मार्केट. एक तरीके से एक इंफॉर्मेशन हो गया जो कि मैं दे रहा हूं. और कहीं पे मैं मान लो बाइक पे बैठा हूं, चला हूं, कोई तीसरा पर्सन आकर के बोल रहा है आर यू गोइंग टू, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. नॉट आई एम एक्चुअली जस्ट टॉकिंग अबाउट माय फादर. लेट्स से कि किसी ने पूछा कि वेयर इज गोइंग, तो मैं एक इंफॉर्मेशन दे सकता हूं माय फादर इज गोइंग टू द मार्केट या ही इज गोइंग टू द मार्केट. तो एक तरीके से कि इंफॉर्मेशन हो गया. ही इज गोइंग टू द मार्केट. लेकिन एक तरीके से एक सेंटेंस हो गया, एक तरीके से स्टेटमेंट हो गया. लेकिन कई बार क्या होता है, ही इज गोइंग टू द मार्केट, यहां पे क्वेश्चन वर्ड, ये कौन बोल सकता है, कोई थर्ड पर्सन या कोई भी. ही इज गोइंग टू द मार्केट, ही इज गोइंग टू द मार्केट. मान लीजिए कोई मुझसे पूछ रहा है माय फादर इज गोइंग टू द मार्केट, बाइक पे बैठे हैं, जाने वाले हैं, कोई तीसरा पर्सन आया, वो पूछ रहा है ही इज गोइंग टू द मार्केट, तो मैं क्या बोलूंगा, यस या नो, ऐसे तो बोलूंगा. बट एक्चुअली उसने क्या बोला, ही इज गोइंग टू द मार्केट, ही इज गोइंग टू द मार्केट. सेम सेंटेंस जो मैंने इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किया था. दैट मीन्स कि एक्चुअली दिस इज नॉट ग्रामेटिकली इट इज नॉट करेक्ट, ग्रामेटिकली इट इज नॉट करेक्ट, लेकिन फिर भी इसको एज ए क्वेश्चन वर्ड, एज ए क्वेश्चन की तरह ही एक्सप्रेस किया जा रहा है. यही चीजें यहाँ पे लिखा गया है. इन सम लैंग्वेजेस वी यूज इंटोनेशन टू एक्सप्रेस क्वेश्चन इवन इफ द सेंटेंस इज नॉट ग्रामेटिकली ए क्वेश्चन. अब दोनों सेंटेंस एक ही हैं दोनों, लेकिन इसमें जो कोई क्वेश्चन है या कोई स्टेटमेंट है, ये दोनों में अंतर के लिए हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, हम इंटोनेशन का यूज करते हुए ये जान पा रहे हैं कि कोई क्वेश्चन है या फिर कोई इंफॉर्मेशन है. तो अभी हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और एक बार इसमें फाइनलाइज करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ इंटोनेशन इज देयर. इन द फर्स्ट सेंटेंस, यू फिनिश द प्रोजेक्ट, यू फिनिश द प्रोजेक्ट, देयर इज अ फुल स्टॉप, यू फिनिश द प्रोजेक्ट, आई फिनिश द प्रोजेक्ट. अगर मुझे बोलना हो आई फिनिश द प्रोजेक्ट, ही फिनिश द प्रोजेक्ट, ही फिनिश हिज क्लास, एक तरीके से प्रॉपरली नॉर्मल स्टेटमेंट है. फॉलोइंग स्टेट इंटोनेशन, यहाँ पे हम कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं. आई फिनिश द प्रोजेक्ट, ही फिनिश द प्रोजेक्ट, यू फिनिश द प्रोजेक्ट, यू फिनिश योर लंच. तो लंच पे लंच ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं कि आप लंच के बाद कोई क्वेश्चन बोल लो. हम प्रोजेक्ट पे यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो टोन है हमारा डाउन हो रहा है, हमारा जो टोन है वो फॉल हो रहा है. दैट मीन्स इन द फर्स्ट सेंटेंस वी आर हैविंग अ फॉलिंग इंटोनेशन. इन द सेकंड statement, the second question, the second sentence is you finish the project. Yes, the same question, you finish the project. अब यहाँ पे क्या, you finish the project along with the question mark. यहाँ पे तो full stop था बट यहाँ पे question mark है. You finish the, अभी मैं आपको बोलूँ you finish the, he finished the work, he finished the project. उसने अपना project finish किया. He finished the project, you finished the project. यानी मैं पूछ रहा हूँ you finished the project, you finished your lunch, you finished your homework.
तो आप बोलेंगे यस या नो। तो लेकिन कहीं ना कहीं जब ये क्वेश्चन की तरह यूज किया जा रहा है तो यहाँ पे जो टोन है हमारा क्वेश्चन की तरह यूज किया रहा है, जो हमारा टोन है लास्ट में क्या है, यू कंप्लीट योर लंच बॉक्स, यू फिनिश योर लंच बॉक्स, यू फिनिश योर होमवर्क। यानी होमवर्क में थोड़ा सा हम टोन है वो ऑटोमेटिकली अब जाने लगता है जब क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जब क्वेश्चन की तरह उसको यूज करते हैं, तो वहां पे हमारा राइजिंग इंटोनेशन आ जाता है। इसी तरीके से और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। लेट अस मूव अहेड, लेट अस रीड। बी वन द मैच, बी वन द मैच, बी वन द मैच। कई बार मैच होता है, हम लोग जीत गए तो एक इंफॉर्मेशन रहता है कि बी वन द मैच। कई बार क्या होता है कि टीवी आपने ऑन किया, इंडिया मैच जीत चुकी है और मुझे नहीं पता है, तो हम लोग जो वहां पे देख रहे हैं उनसे तो यही तो पूछेंगे, इंडिया जीत गई, इंडिया जीत गई, मतलब इंडिया जीत गई। एक ये इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, इंडिया जीत गई, एक क्वेश्चन भी हो सकता है। इन इंग्लिश में अगर बोले बी वन द मैच, एक बार बोलेंगे, जब कोई देख रहा है वो बोलेगा बी वन द मैच, वो तो इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन अगर मैं पहुंचूंगा तो क्या बोलेगा, बी वन द मैच, तो बोलेगा यस बी वन द मैच, धोनी ने छक्का मार दिया लास्ट बॉल पे। तो क्या देख रहे हैं, जो दूसरा ये वाला सेंटेंस है इसमें जो हमारा टोन है, वी आर हैविंग अ राइजिंग इंटोनेशन, बट इन द फर्स्ट सेंटेंस वी आर हैविंग अ फॉलिंग इंटोनेशन। दैट मींस कि व्हेनेवर वी आर हैविंग this kind of sentence having a question mark, this kind of sentence will be treated, this kind of sentence will be delivered with the rising intonation, rising intonation की तरह के साथ उसको डिलीवर किया जाना चाहिए, बोला जाना चाहिए। where are the keys, questions है where are the keys, rising intonation, actually we are focusing on the keys। where are the books, where is the book, where are you, where are my friend, where is my friend, where is your father, where is your mother। आप लास्ट में ना किसको आप खोज रहे हैं, वो यहाँ पे आप फाइनलाइज, आप यहाँ पे एम्फेसाइज करते हैं। तो whenever you are finding someone and you are having this kind of sentence, we would be having a rising intonation। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अभी आपको जब पहला स्टेटमेंट बताया गया था, whenever we are having a statement, a interrogative statement having starting with WH क्वेश्चन वर्ड, वो यहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा है। whenever we are having an interrogative sentence starting with WH question words is having a falling intonation। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे WH से ही स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन यहाँ पे फॉलिंग इंटोनेशन होकर के राइजिंग इंटोनेशन है। तो कोई सही रूप में अगर कहें तो कोई इसका पर्टिकुलर कोई रूल नहीं है, ऐसा रूल नहीं है जो हर जगह फॉलो हो। ये कॉमन सेंस की बातें हैं, एक्सपीरियंस की बातें। जितना समय आप इंग्लिश को देंगे, धीमे धीमे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे, धीमे धीमे आप इंटोनेशंस का प्रॉपर्ली यूज भी करना सीख जाएंगे। Where are the keys? Actually, we are focusing on here. What is your name? Where are the keys? Where are the my bag? Where is the my bag? So all these kind of sentences should be having a rising intonation. The next is you are coming with us. Aren't you? Aren't you? You are coming with us. तुम मेरे साथ आ रहे हो। Aren't you? क्या तुम नहीं आ रहे हो? राइजिंग इंटोनेशन। यहाँ पे क्या बात है, यू आर कमिंग विथ अस, तुम मेरे साथ चल रहे हो, तुम मेरे साथ आ रहे हो। आंटी हो, क्या तुम नहीं चल रहे हो। अब कोई मेरे साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है ये कैसे मतलब तय हो सकता है, ये तो उसके मन के ऊपर है ना, हो सकता है ना चल रहा हूं या चल रहा हूं। लेकिन आंटी को से क्या हम यहाँ पे केवल उसका हामी भरवाना चाह रहे हैं या फिर वाकई जानना चाह रहे हैं कि वो चल रहा है मेरे साथ या नहीं। आप क्या पाएंगे, वाकई ये जानना चाह रहा है क्या वो चल रहा है मेरे साथ में या नहीं। यानी यहाँ पे सिर्फ उसको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, उससे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की जा रही है इन दिस विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन टैग। और इस तरह के क्वेश्चन टैग में किस तरह का इंटोनेशन होता है, राइजिंग इंटोनेशन होता है। व्हेन विल यू जॉइन अस, आखिर तुम कब ज्वाइन करोगे। व्हेन विल यू जॉइन अस, यहाँ पे भी आप देखेंगे राइजिंग इंटोनेशन, क्योंकि अस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। व्हेन विल यू जॉइन अस, व्हेन विल यू जॉइन योर स्कूल, व्हेन विल यू जॉइन द कैंप। कैंप, स्कूल, ये लास्ट में जो आपका वर्ड है इस पे आप एम्फसाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम राइजिंग इंटोनेशन यूज कर रहे हैं। नाउ, अब नाउ एक यहाँ पे भी है, नाउ यहाँ पे भी है। एक में आपका फॉलिंग इंटोनेशन है, एक में राइजिंग इंटोनेशन है। फॉलिंग इंटोनेशन कब होगा, राइजिंग कब होगा। नाउ मीन्स अभी, ये भी मतलब अभी, लेकिन जब वो
आप अभी मैं बोलूं कि आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ, आपने पूछा कब, मैंने बोला आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो आपने बोला नहीं, लेट्स से कि आई टेल यू ऑल दैट कि आई हैव टू गो टू द मार्केट, मुझे मार्केट जाना है, आई हैव टू गो टू द मार्केट। तो लेट्स से कि आप लोगों ने पूछा व्हेन यू आर गोइंग टू द मार्केट, आप कब जा रहे हैं मार्केट, तो मैं क्या बोलूंगा नाउ, नाउ मीन्स अभी, नाउ। तो नाउ यहाँ पे तो ऐसा तो नहीं नाउ, एक होता नाउ, एक होता नाउ। तो अभी तो मैं आपको बिल्कुल नॉर्मली बता दे रहा हूँ कि आपने पूछा व्हेन यू आर गोइंग टू द मार्केट, मैं बोलूंगा नाउ। तो यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा टोन मेरी राइज नहीं हो रही है नाउ पे, नॉर्मली एक बहुत ज्यादा एम्फेसाइज भी नहीं कर रहा हूँ, दैट मीन्स के ये नाउ यानी एक फुल स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हाँ अभी यहाँ पे फॉलिंग इंटोनेशन है। लेकिन कई सारे क्वेश्चंस, कई बार ऐसा होता है कि मैं आपसे बोलूं कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो आप पूछ दें नाउ, आप बोले नाउ, मैं बोलूंगा यस अभी। आप नाउ यहाँ पे बोल रहे हैं, आप एक तरीके से पूछना चाह रहे हैं अभी, क्या अभी जाना चाह रहे हैं, मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू द मार्केट, आप बोले नाउ, तो हम बोलेंगे यस ऑब्वियसली नाउ आई एम फ्री, आई कैन गो। तो व्हेनेवर नाउ वर्ड is used as a question, now whenever now word is being used with the question mark, this kind of that time we would be having a, we should using the rising intonation. Then next one, do your homework now, एक तरीके से स्टेटमेंट है एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस के साथ, do your homework now, आप अपना होमवर्क करो अभी। what we are getting फॉलिंग इंटोनेशन, जब कोई हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मिले या कमांड देने वाली बातें हैं तो वहां पे हमें फॉलोइंग इंटोनेशंस फॉलो किए जाते हैं, वो एग्जांपल है। आई होप इंटोनेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटोनेशंस के जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। इंटोनेशंस को हम लोग पिछले क्लासेस में भी पढ़े थे, इस क्लास में भी पढ़ रहे हैं, कई बार पढ़ रहे हैं, धीमे धीमे डाउट्स आपके जो इंटोनेशन को लेकर के क्लियर हो रहे होंगे और इंटोनेशंस आपको समझ में आने भी लगा होगा। और प्रोनाउंसिएशन में इंटोनेशंस और इंटोनेशंस, बस इंटोनेशंस के इर्द गिर्द ही हमें घूमना है। हाउ वी हैव टू प्रोनाउंस द सेंटेंस, हाउ वी हैव टू रीड द सेंटेंस, व्हाट वी हैव टू रीड द सेंटेंस, इट डजंट मैटर इन द प्रोनाउंसिएशन जंक्शन। हम किसी सेंटेंस को कैसे पढ़ रहे हैं, अपनी बुक्स को कैसे पढ़ रहे हैं, हमारा टोन कहाँ पे अप एंड डाउन हो रहा है, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है शा सा, किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस को था, मतलब कई बार होता है शुरू, आप क्लास 3rd 4th 5th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई सारे सेंटेंस को कई बार जो आपका जो डिफरेंट लेटर्स के जो साउंड्स है मिल करके डिफरेंट साउंड्स बना रहे हैं, तो कई बार उसके साउंड्स अलग हो जाते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स वी स्टडी इन द प्रोनाउंसिएशन जंक्शन, इन द फोनिक जंक्शन। तो अभी वो सारी चीजें कंप्लीट करके हम लोग इंटोनेशंस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आई होप इंटोनेशंस आज आपको समझ में आया होगा। इनकेस कोई भी डाउट रह जाता है तो जो लाइव क्लास होगी उसमें आप लोग पूछ सकते हैं, उसमें वी कैन, तो इन दैट लाइव क्लास वी कैन डिस्कस एंड figure out the problem if any. So आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग को एक सजेशन है कि आप इस वीडियोस को एक बार 2 बार केवल वैसे थॉरली एक बार देख लेंगे प्रॉपर्ली, एक बार 2 बार 3 बार अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको जरूर लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है कि कोई नीडी फ्रेंड्स हो जिसको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अच्छा ही रहेगा, तो इससे हमारा आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो ऐसे में आप इस वीडियोस को, इस जो भी इस लेक्चर को अगर आपको पसंद आया हो, आपको एक इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इसको लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने किसी भी क्लासमेट्स के साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।